ملک میں چینی کی قلت اور آئندہ سیزن میں گنے کی پیداوار میں کمی کے خدشات ہیں۔ وفاقی حکومت نے ستمبر میں چینی امپورٹ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت کو فعال کر دیا ہے۔ ٹی سی پی نے برازیل میں پاکستان کے ایک کمرشل اتاشی کو 1,00,000 ٹن چینی کے امپورٹ کے مواقع تلاش کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، موجودہ صورتحال تو کچھ یوں ہے کہ ملک میں چینی کی قلت اور آئندہ سیزن میں گنا پیداوار میں کمی کے خدشات بڑھ گئے ہیں، جس میں وفاقی حکومت نے ستمبر میں چینی امپورٹ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارتخانوں کو فعال کر دیا ہے، اور اس وجہ سے ٹی سی پی نے برازیل میں پاکستان کے کمرشل اتاشی کو 1,00,000 میٹرک ٹن چینی امپورٹ کے مواقع تلاش کرنے کے لیے خط لکھ لیا ہے۔ اس وجہ سے برازیل حکومت کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا نجی شعبے کی جانب سے چینی امپورٹ کی آپشنز فوری تلاش کی جائیں گی۔ ٹی سی بی کے خط کے مطابق امپورٹ کے لیے ریفائنڈ چینی کے درکار معیار کی تفصیلات بھی خط میں لکھ رہی ہیں، اور پنجاب حکومت نے آئندہ برس گنے کی کاشت میں ممکنہ کمی کے خدشات کے پیش نظر ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ محکمہ خوراک پنجاب نے کم از کم 10,00,000 میٹرک ٹن چینی کا کیری فارورڈ اسٹاک نئی پیداوار کے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، جبکہ مئی 2023 میں پنجاب کی شوگر ملز کے پاس 27,00,000 میٹرک ٹن چینی اسٹاک موجود تھے، جو کہ کم ہو کر اب 13,00,000 میٹرک ٹن رہ گئے ہیں۔ اس وجہ سے عدالتی حکم امتناعی کی آڑ میں لاکھوں ٹن چینی افغانستان سمگل کر دی گئی ہے، جبکہ نگران حکومت نے بقایا چینی اسٹاک کی مانیٹرنگ سخت کر دی ہے۔ اس وجہ سے چینی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر 47 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ فی کلو اوسطاً 30 روپے عوام سے لوٹے گئے ہیں۔ پنجاب میں گنے کی کاشتکاروں کو ان کے زرعی پیداوار کی جائز قیمت دلانے کے لیے محکمہ خوراک پنجاب کی اہم تجاویز سامنے آئی ہیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے گنے میں مٹھاس سکروز کی کم از کم شرح 8.7% مقرر کی ہوئی ہے، جبکہ گنے میں سکروز شرح 8.7% زیادہ ہونے پر مقررہ امدادی قیمت کے علاوہ بھی فی یونٹ 50 پیسے پریمیم کی تجویز سامنے دے دی گئی ہے۔ اس وجہ سے اگر چینی امپورٹ کی جائے گی تو آنے والے وقت میں چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جی بیرسٹر اسامہ مالک، ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن، پاکستان بار کونسل تعینات۔ پاکستان بار کونسل کے عہدیداران کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، بتائیے۔ جی بالکل، معروف قانون دان بیرسٹر اسامہ ملک کو ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے عہدیداران کی منظوری کے بعد بیرسٹر اسامہ ملک کی تقرری سے متعلق باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر اسامہ ملک اس کے علاوہ بھی مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور مختلف جو کمیٹیز ہیں ان کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل کے تمام عہدیداروں کی باقاعدہ منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے بیرسٹر اسامہ ملک کو وکلا تنظیموں کی جانب سے اور جو دیگر عہدیداران ہیں ان کی جانب سے مبارکباد بھی پیش کی گئی، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ جی محمد اشفاق، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اشفاق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ اشفاق۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے جامع مسجد الصادق، بہاولپور، چڑیا گھر اور چولستان میں قدیم تہذیب گویری والا کی باقیات کی دریافت کے حوالے سے متعلقہ محکموں کے افسران کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ چولستان میں قدیم ورثہ اور تہذیب دفن ہے، جسے دریافت کر کے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد یاسین سے۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجیے۔ آج گورنر لاہور میں جامع مسجد الصادق، بہاولپور، چڑیا گھر اور چولستان میں قدیم تہذیب گویری والا کی باقیات کی تلاش کے حوالے سے متعلقہ محکموں کے افسران نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران افسران نے گورنر پنجاب کو جامع مسجد الصادق، بہاولپور، چڑیا گھر اور چولستان میں قدیم تہذیب گویری والا کی باقیات کی تلاش کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر یہ طے پایا کہ چولستان میں گمیری والا اور سارے قدیمہ کے دریافت کے بارے میں کھدائی کا کام اکتوبر میں ہر صورت میں شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ چولستان کے اندر جو قدیم ورثہ تہذیب کے دفن ہے، اسے دریافت کر کے قدیم تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قدیم وادی سندھ کی تہذیب سے باقیات کے بارے میں مزید معلومات مل سکتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی توقع کی کہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب میں موہنجو-داڑو اور ہڑپا کے سائز جتنے شہر یہاں بھی دریافت ہو سکتے ہیں۔ اب
इससे पाकिस्तान को बैन अवी सतह पर पहचान मिलने के साथ सियाहत के मौके भी पैदा होंगे। गवर्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटियों और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के दरमियान रवाबत मजबूत बनाने से तलबा को कदीम तहजीब के बारे में बहुत कुछ सीखने और तहकीक करने का मौका मिलेगा। गवर्नर ने मजीद कहा कि जामिया मस्जिद सादिक और बोस्तान अजीज समेत वक्फ इमलाक की बेहतर देखभाल है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से हिदायत की कि जामिया मस्जिद अल सादिक की फंडिंग बढ़ाने और मस्जिद इंतजामिया के इंतजाम इंसलाम के मुतल्लिक बेहतरी लाई जाए। उन्होंने मस्जिद अल सादिक की सफाई सुथराई, वाश रूम, नमाज हॉल, फर्श, मीनार, पखे, तनसीबात की सफाई सुथराई के बारे में खास हिदायत की। गवर्नर ने मस्जिद बोस्तान अजीज जो हफीज रहमान की बनाकर वक़्फ की हुई इसकी बेहतरी और मुस्तकबल की मनसूबाबंदी के हवाले से भी हिदायत दी। बहावलपुर चिड़ियाघर के हवाले से इजलास में तय किया गया कि इस कदीमी नाम की शेर बाग बहाल किया जाएगा और चिड़ियाघर को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए। यहाँ नए जानवर लाए जाएं और पुराने जानवरों की बेहतर देखभाल की जाए। गवर्नर ने पंजाब में हिदायत की कि टिकटिंग के पार्किंग और पिंजरों के अंदर जानवरों को खाने पीने की सियात बेहतर की जाए। और गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में जहां मॉडल चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं वहां बहावलपुर चिड़ियाघर को भी अपग्रेड और मजीद बेहतर बनाया जाए। मुलाकात में ये तय पाया कि लाल खान नेशनल पार्क को भी मजीद बेहतर किया जाएगा और इसके अलावा चौक फुहारा जनाजा की बेहतरी के हवाले से भी गुफ्तगू की। इस मौका पर डीजी वार्ड सिटी कामरान लशारी कमिश्नर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन, आप आगाह कर रहे थे। बादामी बाग पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। मनीशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम यूनुस से लाखों मालियत की 5 किलो मनीशियात बरामद। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल, चीफ ऑफ लाहौर और डीएजी ऑपरेशन के अहकाम की रोशनी में बादामी बाग पुलिस ने कार्रवाई की है। रिकॉर्ड याफ्ता लिस्टेड मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम यूनुस और जूना पठान के कब्जे से लाख रुपए मालियत की 5 किलो चरस बरामद कर ली गई है और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम मंशियात फरोशी के मकरू धंधे में रिकॉर्ड याफ्ता है और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, जिनके पर मजीद तहकीकात भी जारी कर दी गई है। तो मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद हवालात बंद कर दिया गया था, जहाँ पर उसके साथ मजीद तहकीकात करके देखा जाएगा कि मुसलसल इसके पिछले जो रिकॉर्ड था उसमें क्या ट्रैक रिकॉर्ड था और कितने केसेस का जरिए बना मौजूद था। और एसपी सुल्तान जफर ने जो है एसएचओ बादामी बाग की टीम को शाबाशी भी दी है। अरशाद ने एसएचओ बादामी बाग ने कहा कि मंशियात से पाक शहर के लिए पुरअज़म और कोशिश की जाएगी कि इस तरह जितने भी नासिर उनके खिलाफ कड़ी हिकमत अमली अपनाई जाए। जी, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुबीन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया ने महंगाई के आगे घुटने टेक दिए। रोटी, दूध, दही, दालें और चावल सब कुछ महंगा हो गया। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में। महंगाई के जिन ने मजीद पर फैला लिए। रोटी, दूध, दही, दालों और चावल की कीमत में इजाफा। ज़िलाई इंतजामिया ने अशिया खोरनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोटी की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई। शहर भर में रोटी पहले ही 20 रुपए की फरोख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने 3 रुपए इजाफा करके खुद से दबाव कम किया है। सरकारी तौर पर दूध की कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपए कर दी गई और दही की कीमत 165 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो कर दी गई। दाल मसूर की कीमत 250 से बढ़ाकर 270 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चावल की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए तक जा पहुंची। नोटिफिकेशन के मुताबिक बासमती चावल का होलसेल रेट 305 रुपए और रिटेल 310 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल चना बारीक की कीमत होलसेल में 200 रुपए और परचून में 205 रुपए फी किलो होगी। दाल चना स्पेशल होलसेल में 210 रुपए और आम मार्केट में 215 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दाल मसूर इम्पोर्टेड होलसेल में 265 और परचून में 270 रुपए फी किलो मुकर्रर। इसी तरह मूंग दाल छिलके वाली होलसेल में 215 और आम मार्केट में 220 रुपए किलो होगी। दाल माश धुली इम्पोर्टेड होलसेल में 500 और परचून में 510 रुपए किलो में दस्तयाब। दाल माश छिलके वाली होलसेल में 445 और आम मार्केट में 450 रुपए किलो मुकर्रर। काले चने मोटे होलसेल में 210 और रिटेल में 215 रुपए फी किलो होंगे। बारीक चने होलसेल में
195 और परचून में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होंगे। सफेद चने की होलसेल कीमत 315 और आम मार्केट में 320 रुपए फी किलो मुकर्रर। बेसन होलसेल में 210 और परचून में 215 रुपए में फरोख्त होगा। पानी, बोतलें, मशरूबात और दीगर कंपनियों की प्रोडक्ट्स प्रिंट शुदा कीमतों में फरोख्त की जाएंगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई से जीना भी मुहाल हो चुका है। ऐसे हालात कर दिए हुए हैं इन्होंने, आटा जो हमारी वर्थ में था वो भी ख़त्म हो गया, चीनी थी वो भी हमारी वर्थ से ख़त्म हो गई, घी था वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। हमारी वर्थ जिस चीज़ पे एक्सेस थी कि घर का खर्चा चला रहे थे वो हमारे से छीन ली है। हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है, दालें, खीर, चीनी, हर चीज़ तनख्वाहें उतनी की उतनी हैं और हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है। इसके लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, दालें भी महंगी हो गई हैं और सब्जियों के नर्ख भी जो हैं आसमान की तरफ जा रहे हैं। क्या कहें कि मज़दूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, मजदूर के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों की शिकायत दर्ज करवाएं। सरकारी निरखनामों पर अमल न करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महंगाई के हर शोबा पर वार जारी है। LDA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस भी 2 गुना हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। ज़मीन के इंतकाल की फ़ीसों में इजाफे के बाद टाउन प्लानिंग की फ़ीसों में भी इजाफा कर दिया गया। LDA ने घर बनाने की मंजूरी का प्रोसेस भी महंगा कर दिया। टाउन प्लानिंग की मुख्तलिफ कमर्शियल फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नई फ़ीसों का इतलाक हो गया। LDA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फ़ीसों की मद में भी इजाफा किया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फ़ीस भी दोगुना हो गई। कमर्शियल फ़ीस में इजाफा होने की वजह से लोगों ने इमलाक कमर्शियल करवाने के लिए LDA से रुजू करना छोड़ दिया। रवां माली साल के पहले 2 माह में LDA को कमर्शलाइजेशन की सिर्फ 13 दरखास्तें मौसूल हुईं। जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलबर्ग मेन बॉलीवुड पर कमर्शियल फीस फी मरला 22,58,000 रुपए हो गई। MM आलम रोड पर LDA की कमर्शियल फीस फी मरला 21,11,000 रुपए तक पहुंच गई। जोहर टाउन में मरकजी शाहराह पर कमर्शियल फीस 7,71,764 रुपए हो गई। गार्डन टाउन और इचरा के इलाके में कमर्शियल फीस फी मरला 8,05,000 रुपए मुकर्रर। गार्डन टाउन सिविक सेंटर में फी मरला मुस्तकिल कमर्शियल फीस 10,09,000 रुपए तक जा पहुंची। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और रेवेन्यू के अफसरान को नई फीसों के मुताबिक चालान जारी करने की हिदायत कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क के सबसे बड़े कारोबारी अदारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया है। अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट देखेंगे। FPCCI के मरकजी सदर इरफान इकबाल शेख की रीजनल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बिजली के बिलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 68% चार्जेस आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया जिसे FPCCI मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सारिफीन पर टैक्स और ड्यूटीज की भरमार है। बिजली के नरफों में कमी का फौरी हल ये है कि तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ऑपरेशनल अखराजात को कम किया जाए, यानी वापडा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी वापस दी जाए और जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जहाँ पे बिजली सुबह से लेकर शाम तक उनकी टाइम एडजस्टमेंट की जाए और ट्रांसमिशन के नुकसानात को फौरी तौर पर कम किया जाए और बिजली की चोरी को फौरी तौर पर रोका जाए। कोऑर्डिनेटर FPCCI मोहम्मद अली मियां ने इस मौका पर कहा कि बिजली के बिल जिस सतह पर पहुंच चुके हैं ये किसी की बर्दाश्त में नहीं। एक साजिश के तहत पाकिस्तान को दलदल में फंसाया गया है। मसाजिद के बिलों पर भी टैक्सेस आयद हैं। आवाम जो घर में छोटे 300 तक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाजिद के ऊपर, मदरसों के ऊपर सब जगह टैक्स लगा दिया। तो ये निजाम गवर्नमेंट तवज्जो दे। ये FP यहाँ की जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, कोई जुगाड़ नहीं है कि एक सेल टैक्स, उसके ऊपर फर्दर टैक्स, सुपर टैक्स, 20% टैक्स लगानी है। इस टैक्स के ऊपर जो है वो पूरी तरह हम निकास करते हैं तो खत्म होना चाहिए। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट और दीगर ने कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर भारी बिल भेजने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। 2 सितंबर को बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हमारी हड़ताल पुरअमन होगी, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। बिजली के बिलों में इजाफा करना निगरान हुकूमत का काम नहीं। निगरान हुकूमत इलेक्शन करा के इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करे। सिराजुल हक का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने शटल डाउन हड़ताल की अपील की है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये ऐलान है कि ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर पुरअमन हड़ताल होगी, कोई गिराव जलाव इसमें नहीं होगा और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आवाम पर जो बेइंतहा बोझ डाला गया है, जिसके बर्दाश्त के अब आवाम काबिल नहीं है, इसको वापस ले ले। और मैं यकीन दिलाता हूँ पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद ने कहा है कि अवाम बिजली के भारी बिलों के बायस खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुल्क को महंगाई के चुंगल से निकालना होगा। पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना फारूक सईद का कहना था कि मुल्क को महंगाई के चुंगल से निकालना होगा। बिजली के बिलों में बेइंतहा इजाफे ने सूरत हाल गंभीर कर दी है। अवामी एहतजाज में इजाफा हो रहा है, ये ख़तरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थी और अब भी तैयार है। हम चाहते हैं कि असेंबली टूट चुकी है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है। पहले भी इन्होंने सूबाई इलेक्शन पीपल्स पार्टी तैयार थी और अल्लाह के फजल से हर सीट पे हमने कैंडिडेट दिया। आज भी हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह हर सीट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, NA में भी और MPA में। ये हमारा डिमांड है जो हमने की है कि नहीं, इलेक्शन आगे नहीं। खबर यह है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में घपले और किकबैक्स के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तोसी कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में घपले और किकबैक्स का मुकदमा। परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब के तफ्तीशी अफसर ने परवेज़ इलाही से इब्तदाई तहकीकात से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि परवेज़ इलाही तफ्तीश में नैब से ताउन नहीं कर रहे। साबिक वज़ीर आला के अकाउंट में 120 मिलियन रुपए आए, लेकिन वो ताहाल उसके ज़राए नहीं बता सके। परवेज़ इलाही फैमिली अरकान के अकाउंट्स में भी भारी रकूम जमा हुई। अजमत हयात ने और वादा माफ गवा किकबैक्स और रिश्वत से मुताल्लिक बयान दिया है कि परवेज़ इलाही ने कानून से हटकर किकबैक्स के लिए स्कीमें मंजूर की। उनसे मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए। परवेज़ इलाही के वकील अमजद परवेज़ ने जिस्मानी रिमांड में तोसी से मुताल्लिक दरखास्त की मुखालिफत की और कहा कि परवेज़ इलाही के खिलाफ कई नए केसेस दर्ज करके उन्हें छुपा लिया गया है। मोनस इलाही ने अगर कोई काम गलत किया है तो उसकी जिम्मेदारी परवेज़ इलाही पर नहीं डाली जा सकती। प्रोसिक्यूशन से कहें कि वो इल्जामात की दस्तावेज भी फराहम करे। परवेज़ इलाही ने रोस्टरम पर अदालत को बताया कि फैमिली से प्रॉपर मुलाकात नहीं कराई जा रही। मेरे टेस्ट और आंखों का चेकअप होना था, वो भी नहीं कराए गए। अल्लाह के बाद आपकी अदालत है, मेहरबानी करके सख्त ऑर्डर पास करें। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तोसी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सियासी शख्सियात के केसेस की समाअत करने वाले मातहत अदलिया के जज समेत 53 जज साहिबान तब्दील कर दिए गए। जिन्ना हाउस हमला केस, मनी लॉन्ड्रिंग, मशकूक ट्रांजैक्शंस और आशियाना केस पर समाअत करने वाले जजेस के तबादले किए गए हैं। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखें। पंजाब में अहम केसेस की समाअत करने वाले 53 जजेस तब्दील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद जजेस के तबादले किए गए। जिन्ना हाउस हमला केस चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत खारिज करने वाले जज एजाज अहमद भुट्टर को तब्दील कर दिया गया। जज एजाज अहमद भुट्टर ने 9 मई के केसेस में नई दफात शामिल करने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह समेत 68 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड दिया। जज एजाज अहमद भुट्टर को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई। मशकूक ट्रांजेक्शन केस में परवेला की जमानत मंजूर करने वाले जज असलम गोंदल को भी तब्दील कर दिया गया। इन्हें भी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं। शहबाज शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाले जज बख्त फखर behzad का भी तबादला कर दिया गया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज बख्त फखर behzad को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। आशियाना केस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज साजिद अली भी तब्दील। राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने वाले ATC के जज राना जाहिद महमूद का भी तबादला किया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इरफान सईद को तब्दील करके सेशन
सेशन जज मुल्तान तैनात कर दिया गया। सेशन जज फैसलाबाद खालिद बशीर को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गईं। सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर को तब्दील करके लाहौर हाई कोर्ट में डीजी केस मैनेजमेंट तैनात कर दिया गया। सेशन जज कसूर कैसर नजीर भट्ट को तब्दील करके सेशन जज लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 53 जजेस को नए जिला में 4 सितंबर तक चार्ज लेने की हदायत जारी कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट के 7 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 8 सीनियर एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स को तरक्की दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मंजूरी दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के 7 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 8 सीनियर एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स को तरक्की दे दी गई। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार जबकि सीनियर एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स को असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार अजमल अमीर खान, मोहम्मद वकास, अयाज अहमद, मोहम्मद इमरान और अली अहमद मलिक शामिल हैं। अनीका असद और इम्तियाज अली खान भी डिप्टी रजिस्ट्रार बन गए। रियाज अहमद, नासिर महमूद जेगम, मोहम्मद अयूब मुगल, आसिफ कमाल शेख, हफीजुर रहमान अंसारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की पा गए हैं। सीनियर एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स मोहम्मद आशिक, फरूक अंजुम और उमर खान भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर तरक्की की मंजूरी दी। और अभी आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर सानहा 9 मई के मुकदमात का मामला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तफ्तीश के लिए अटक जेल पहुंची। दौरान तफ्तीश खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग को फ्रांसिक लैब भिजवा दिया गया है। चेयरमैन PTI ने अपने वकला के बगैर JIT को बयान कलम बंद करवाया। तफसीलात मुजाहिद लतीफ़ की इस रिपोर्ट में। सानिया 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात में अटक जेल में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दौरान तफ्तीश चेयरमैन PTI के बयानात की रिकॉर्डिंग फ्रांसिक लैब भिजवा दी। पुलिस राय के मुताबिक फ्रांसिक लैब से तस्दीक होने के बाद ऑडियो बयान को बतौर सबूत रखा जाएगा। चेयरमैन PTI ने अपने वकला के बगैर JIT को बयान कलमबंद करवाया। पुलिस राय का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा पुलिस अफसरान को धमकी नहीं दी। जेल में एहतियाती तदाबीर के बायस शेव नहीं कर रहे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, सुबह लेट उठते हैं, जेल में ज्यादा वक्त वर्जिश और मुतालिया में गुजरता है। JIT ने चेयरमैन PTI का दूसरी मरतबा बयान कलमबंद किया है। मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़।